In depreciation, we have to understand first of all the inputs. So quickly let us list out the inputs. So cost of asset becomes the first input. So you have to ensure that you take care of all the inputs that we have. Then we have useful life. Now useful life is always in years. Make sure that you mention that. Next we have salvage value. Salvage value के बाद में हमारे पास आखिरी इनपुट आता है मेजर इनपुट months in first year. Now there might, so let us do the first case today. ठीक है, जहां पे हमको दोनों मेथड के हिसाब से अलग अलग टेबल बनानी है. So we have to create a table for SLN and we have to create a table for DB. दोनों मेथड से हमको टेबल बनानी है. तो क्या करेंगे? Let me just create a bold font that's very clear. Now, so let us first do the cost of asset. Let's assume it was 20 lakhs. 20 lakhs. Yes. Let me change it to counting 2 lakhs. 20 lakhs. Let's suppose the useful life is 6 years. Salvage value is 4 lakh. का फॉर्मेट अकाउंटिंग कर देते हैं और मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में हमको फर्स्ट टाइम वी हैव टू अप्लाई अ एक्सेल टूल. क्या टूल अप्लाई करना होता है यहाँ पे? Data validation. डेटा वैलिडेशन. गुड. सो डेटा वैलिडेशन करने का, so I am just creating a list of things that you have to do so that everyone has a do what we are doing. So the first thing that you have to do is, major thing is to create drop down menu for month in first year using data validation. So Excuse me, simply, sir. yeah, So the question says that the useful life is of 6 years. The seller informed that after 8 years the salvage value would be 4 lakhs. तो यूजफुल लाइफ हम तो फिर हम लोग उसमें ड्यूरेशन 6 years लेंगे या फिर 8 years लेंगे फॉर डेप्रिसिएशन. so you, whatever you do, your sheet should work both for 6 and both for 8, right? So it can be both. Your sheet should work for both 6 and 8 years, right? Are you getting my point? यस सर, बट इन द एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, सो हम लोग यूजफुल लाइफ में 6 इनपुट डालेंगे या फिर 8 डालेंगे व्हाइल यू आर सबमिटिंग. मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी शीट में 6 डालूं इनपुट या 8 डालूं, काम करना चाहिए, ठीक है सर, ओके. right? So now we go to data, and here in data we go to data validation, and here we have to select list. List में you have to provide 1 comma 2 comma 3 comma 4. This is how we add all the required. So now some people try and do it कि वो 0 से शुरू करके 11 तक जाते हैं, या फिर आप 1 से लेकर 12 तक जाते हो. I always prefer going from 1 to 12 because 12 shows that you have used the machine for the entire 12 months. So now you press OK, and now you have a drop down menu where you can select these values. So अभी के लिए let's suppose we select 6 months in first year. Now in a case when we have to prepare two different tables, तो हमको यहाँ पर जो कॉलम्स बनाने हैं वो दोनों टेबल के लिए बनाने होंगे. So you have period, opening balance, depreciation, and then closing balance. We take those same things
to dB also. Now let us first prepare the SLN sheet. Now first of all create the table so that you get the calculation right, and then we will try and think of the garbage cleaning. Okay, so the first thing after getting all your inputs right is to prepare the calculation table. So we all know when we have months in first year less than 12, then how many rows do we need? If you have months in first year less than 12, then how many rows do you need? खा पी के सब सो गए. Life plus 12, yes. So rows needed का सिंपल जो रूल है वो है if month is less than 12, right? 1 से लेकर 11 की वैल्यू है मंथ में, then rows needed is equal to life plus 1. जितनी यूजफुल लाइफ गिवन है plus 1. If month is equal to 12, then rows needed is equal to life. All right. तो अभी यहाँ पे हमें पता है मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 6 है यानी लेस देन 12 है. वी हैव टू अप्लाई दिस रूल लाइफ प्लस 1. So you start with 1, 2 and then go till 7. Now once you have got the period cell going, the first thing that we need to do for the first row is to get the opening balance. We get the opening balance from B2, that is cost of asset. Now we calculate depreciation. Depreciation calculate करने के लिए which formula that we apply? Yes, Sarthik. सर आप जैसे अभी अभी तो मतलब डिफो करा रहे हो, सिंगल सिंगल एसएलएन का अलग से करा रहे हो और डीबी का अलग से, बट एग्जाम में तो हमें साथ में करना पड़ेगा ना, कंबाइन बनाना पड़ेगा दोनों को. दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, साथ वाला भी आ सकता है. दोनों केसेस कवर करवाऊंगा. पहले इजी वाला कर रहे हैं. ओके सर. और असाइनमेंट में तो डबल वाला है. हाँ, असाइनमेंट में डबल वो वाला भी अभी डिस्कस करेंगे. तो ओके सर, अभी थैंक यू सो मच. डेप्रिसिएशन की पहली टेबल में एसएलएन मेथड के हिसाब से फॉर्मूला लगेगा. एसएलएन सिंपल फॉर्मूला. स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एसएलएन. द कॉस्ट दैट यू विल गेट इज विल बी दैट इज द कॉस्ट यू हैव बीन गिवन इन B2. ये हमारा B2 का कॉस्ट हो गया. देन सैल्वेज वैल्यू हमें B4 में गिवन है एंड लाइफ इज गिवन इन B3. ध्यान रखना 6 और ईयर्स को अलग अलग कॉलम अलग अलग सेल्स में लिखना है. ठीक है, कॉलम्स. So depreciation gets calculated. Now is it the right value? हमने depreciation calculate करी है SLN के हिसाब से, इतनी आ रही है. Is it the right value? नहीं सर. क्या होनी चाहिए right value? So always remember that you have to make sure कि जो months का adjustment है वो हुआ है या नहीं. अब फर्स्ट ईयर में we are seeing that we are only using the machine for 6 months यानी half the year. SLN का formula without any adjustment always calculates depreciation for an entire year, all the 12 months. So now we have to apply the month adjustment. So this happens in case of SLN only. तो SLN की टेबल में month adjustment is to be applied in the first row and last row. So now you come to SLN formula and here you apply an adjustment. क्या adjustment होगा? The adjustment will be multiplying the SLN calculation with months in first year divided by 12. So that way you will get the right depreciation value in the first year. अब closing balance निकालते हैं.
क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन गेट्स यू द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर. Now, from the second row onwards, your opening balance should come from the closing balance of previous row. So you use this mechanism that you refer after typing equal to refer to the previous closing balance. अब यहां से डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है. अब डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर एसएलएन का फॉर्मूला प्लेनली लग सकता है क्योंकि सेकेंड ईयर से हम पूरे साल के लिए मशीन को यूज कर रहे हैं. So here we will keep on fixing the values using F4. डॉलर साइंस लगाते रहेंगे so that we can drag the formula later on. क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम सिंपली पहली वाली रो से ड्रैग डाउन कर सकते हैं. You get 16 lakh. Now drag this till the second last row. लास्ट में हमारे पास में जो ओपनिंग बैलेंस है that we can derive by dragging, बट डेप्रीसिएशन में हमें अब यहाँ पर एसएलएन का फॉर्मूला अलग से लगाना पड़ेगा. तो कैसे लगेगा एसएलएन का फॉर्मूला? एसएलएन के फॉर्मूला में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. द एडजस्टमेंट वुड बी दैट वी विल मल्टीप्लाई इट विद 12 माइनस months in first year and put it in double brackets because 12 माइनस B5 को एक ब्रैकेट में रखेंगे और फिर डिवाइडेड बाय 12 के बाद दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे. दिस वुड बी योर लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट. So now when you calculate closing balance by dragging, you will get 4 lakh as your closing balance. ठीक है? Everyone gets this point? Yes, sir. Now let us come to DB. अब यहाँ पे हमें पीरियड को फिर से लगाने की जरूरत नहीं है. We'll just simply copy paste. ओपनिंग बैलेंस के लिए we will get it from B2. डेप्रीसिएशन के लिए DB का फॉर्मूला लगाना है. DB के फॉर्मूले में कॉस्ट यहाँ से आएगा. अब क्योंकि हम DB का फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग डाउन कर सकते हैं तो हम इन सब चीजों को फिक्स करते हुए चलेंगे because we do not have to change anything in the basic input. अब यहाँ पर जो चौथा इनपुट आता है DB में that is period. Now period is simply the current period कि कौन सा पीरियड है जिसके लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो फर्स्ट रो में है यानी कि करंट पीरियड फर्स्ट एंड देन यू पुट द मंथ इनपुट. इसको भी फिक्स कर लेंगे. तो इस पूरे फॉर्मूला में हमें दिखाई पड़ता है कि हम सब कुछ फिक्स करेंगे एक्सेप्ट फॉर द पीरियड वाला इनपुट. सो दैट गिव्स अस डेप्रीसिएशन एज पर द डीबी मेथड. अब ये आसान हो जाता है. ओपनिंग माइनस डेप्रीसिएशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस सेकंड रो का आएगा पहले वाले क्लोजिंग बैलेंस से. इस डीबी को हम ड्रैग कर सकते हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस को भी ड्रैग कर सकते हैं. नाउ you can just simply drag the entire second row to reach the end of the table. So in this manner you complete the calculation of the table. Ab once you have completed the calculation, now you have to apply the garbage cleaning method. Garbage cleaning method. अब गार्बेज क्लीनिंग मेथड अप्लाई करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है. पहली चीज जिसका ध्यान रखना है कि हमें प्रोग्राम करना है पीरियड कॉलम को. So we have to program the period column. अब ये जो प्रोग्रामिंग है ये हम इफ फॉर्मूला से करने वाले हैं. तो इफ फॉर्मूला से प्रोग्रामिंग करने का क्या तरीका है? यू हैव टू लीव आउट द फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड को छोड़ देंगे. तो फर्स्ट पीरियड को छोड़ देंगे. हम सेकंड पीरियड से
अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने 2 लिखा हुआ है, सिंपली 2। हियर वी हैव टू टाइप अ इफ फॉर्मूला। नाउ द नंबर ऑफ रोज इज डिपेंडेंट ऑन कि मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में क्या लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि मंथ वाले इनपुट में 12 है या नहीं, क्योंकि अगर 12 लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ लाइफ के बराबर रोज चाहिए, नहीं तो एक एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे हमारे इस केस में मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 6 है तो हमको 7 रोज चाहिए, बिकॉज यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स की है और हमारे पास 6 महीने बाकी बच जाते हैं एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक कि B5 में इज B5 इक्वल टू 12। अगर B5 इक्वल टू 12 है, then here we apply a second if formula. वो if formula क्या है? That check the previous period is less than useful life. तो अगर previous period useful life से छोटा है, so right now previous period is 1 and useful life is 6. So if 1 is less than 6, then we have to do a +1 in the previous period, otherwise we keep it empty, को खाली रखना है। So that is your first if formula and that is part of value if true for your larger if formula. Next, अगर months in first year 12 नहीं होता, value if false हो जाता है, तो हमें क्या करना है? Then we have to see कि period previous period क्या useful life +1 से छोटा है। अगर ऐसा है then we do E3 +1, otherwise we keep it empty. So you complete your if formula like this. अब इसमें एक if formula के अंदर 2 if formulas हैं, so this is called a nested if formula. इसमें हम B3 को भी फिक्स कर देंगे, ये आपका फाइनल if formula बनेगा, where you first of all check कि मंथ वाले सेल में 12 है या नहीं। अगर 12 लिखा हुआ है then we trigger this if formula, otherwise we trigger this if formula. So now when you do that and you drag this formula down, then your table automatically stops at 7. ठीक है। अब अगर मैं इस पीरियड को यूजफुल लाइफ को 6 से 8 भी कर दूंगा तो भी वो अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। सो इट रियली डजंट मैटर कि यूजफुल लाइफ क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में, योर फॉर्मूला शुड बी वर्किंग। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम कर दिया पीरियड कॉलम को, देन द सेकंड स्टेप इज टू program the other columns based on the period column. How to do that? अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, फर्स्ट रो को छोड़ देना, फर्स्ट रो में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेकंड रो से काम शुरू होगा। सेकंड रो में क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास H3 लिखा हुआ है। H3 का मतलब प्रीवियस रो का क्लोजिंग बैलेंस। व्हाट डू यू हैव टू डू? H3 को कट कर लो, यहाँ पर इफ फॉर्मूला लगाएंगे। इफ फॉर्मूला सिंपल है, हम चेक करेंगे कि पीरियड वाला जो सेल है अगर वो खाली है then we want to keep this cell empty, otherwise we want to have H3. So this becomes your if formula in opening balance, that if E4 is empty then we keep this cell empty, otherwise we write H3. So you are saying कि क्योंकि यहाँ पे पीरियड वाले सेल में 2 लिखा हुआ है तो हमको ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है। सिमिलरली अब डेप्रीसिएशन के लिए भी करेंगे, उससे पहले क्लोजिंग बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इजी है। क्लोजिंग बैलेंस में इफ फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करेंगे इफ E4 इज एम्प्टी देन वी कीप इट एम्प्टी, अदरवाइज वी कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। So this becomes your if formula for closing balance. But
in depreciation we have to make sure कि कहीं ये लास्ट रो के लिए डेप्रीसिएशन तो नहीं कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि देखो अगर हम देखें यहाँ पे तो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला यहां से लेकर यहां तक एक तरीके से अप्लाई होता है और फिर लास्ट रो में जब हम आते हैं देन इट चेंजेस, बिकॉज लास्ट रो में हमें लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट करना है, मंथ वाला। सो हाउ टू डू दैट, यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाएंगे, because everything depends on months in first year। अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर में 12 लिखा होगा तो हमें लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं, बट अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर 12 से छोटा है तो फिर हमें चेक करने की जरूरत है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू, वी विल चेक इफ मंथ्स इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 12। अगर ये 12 है तो सिंपल है, अब हमें सिर्फ एसएलएन का फॉर्मूला लगा देना है, बाकी सारी रोज का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। So we put the SLN formula as the value if true, if months in first year is equal to 12। अब अगर 12 नहीं होगा तो 12 से कम ही होगा, 12 से कम होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या लास्ट रो आ गई है, लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट करना है या अभी नहीं करना है। तो अगर ऐसा है तो हमें चेक करना होगा, वी विल टाइप एन इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला में वी विल चेक इफ E4 is equal to useful life, that is B3 plus 1, क्योंकि हमारी लास्ट रो क्या होगी अगर मंथ्स इन फर्स्ट ईयर लेस देन 12 है, दैट वुड बी लाइफ प्लस 1। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग B3 प्लस 1। हम चेक कर रहे हैं कि पीरियड वाले सेल में कहीं हम लास्ट ईयर में तो नहीं पहुंच गए। तो लास्ट ईयर में अगर पहुंच गए हैं तो हमें SLN के साथ में ये एडजस्टमेंट करनी होगी। एडजस्टमेंट क्या है, 12 माइनस मंथ्स इन फर्स्ट ईयर, इसको फिक्स कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 12, तो दैट बिकम्स योर एडजस्टमेंट। अगर ऐसा नहीं होता है, अभी हम लास्ट रो से पहले ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें सिंपली एसएलएन का फॉर्मूला लगाना है। so that becomes your final if formula for depreciation column। ओके हाँ सार्थक पूछो। सर हमने इसमें ये नहीं किया, जैसे हमने जैसे ओपनिंग बैलेंस में किया था ना कि इफ हमारा जो सेल है राइट राइट राइट, E2 इज एम्प्टी सो लीव इट यस एम्प्टी, हम ऐसे भी कर सकते हैं। यस यस यस, वी और विल हैव फिर टू हम डू दैट। नेक्स्ट स्टेप पे लगा सकते हैं आगे वाला, जिसमें हम कंबाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं राइट, 7th और सो उसमें। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो यहाँ पे अब हमको अपना जो गार्बेज क्लीनिंग है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इफ E4 is empty then we keep it empty, otherwise we check for this। so that becomes your if formula। yeah, thanks for reminding। ठीक है, so this is how we create the if formula in the case of SLN। let me apply it। अप्लाई करने के बाद में अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि 7th ईयर के लिए वो डेप्रीसिएशन में एडजस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको 12 कर देता हूँ, इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स एट 6, इट डजंट गो बियॉन्ड 6 बिकॉज वी डोंट नीड द एक्स्ट्रा ईयर। ठीक है, if I select a value which is less than 12, let's suppose we select 11, then it will adjust accordingly। तो एग्जाम के मोटिव से SLN और DB में अच्छा तरीका ये रहेगा कि क्रिएट वन टेबल फर्स्ट, SLN बना लो, फिर उसके बाद DB करना, क्योंकि DB का ऑप्शन थोड़े आसान है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस टेबल, कंट्रोल C एंड पुट इट ओवर हियर। You will have to do some adjustment, so we will do that adjustment।
तो G2 की जगह पर वी हैव गॉट कॉस्ट ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन में हमें पता है डीबी का फॉर्मूला लगना है, तो वी क्विकली अप्लाई द डीबी फॉर्मूला। और क्योंकि ये पहली रो है तो यहाँ पे तो हमें एनीवेज कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू सिंपली कैलकुलेट इट फॉर 1 ईयर एट लीस्ट। इसमें हम वैल्यूज को भी फ्रीज कर लेते हैं। We freeze these values and this value, so that becomes our first। अब यहाँ पर सेकेंड रो में आ रहे हैं, तो सेकेंड रो में क्या है, वी ऑलरेडी हैव दिस पीरियड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने इस SLN वाली टेबल से इस DB वाली टेबल को बनाना चाह रहे हैं। So we already have this programming, so we don't have to worry about the period cell। We just have to make sure that our depreciation is correctly calculated। तो depreciation calculate करने का क्या आसान तरीका है, we just simply have to see कि हमें पीरियड सेल खाली मिल रहा है या नहीं। अगर पीरियड सेल खाली है तो हम उसको खाली रखेंगे, नहीं तो हम सिंपली डीबी कैलकुलेट कर देंगे। तो इट्स दैट सिंपल, बिकॉज डीबी में हमको कहीं पे भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो यू अप्लाई दैट एंड देन यू ड्रैग इट डाउन फ्रॉम द सेकेंड रो ऑन। तो ये आपका डीबी मेथड से भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। नाउ आई चेंज इट टू 12, दे बोथ स्टॉप एट 6। So I hope this is very clear now कि हम किस तरीके से काम को कर रहे हैं यहाँ पे। So this is depreciation case 1, जहाँ पर हम अलग अलग शेड्यूल बना रहे हैं, SLN का अलग, DB का अलग। Let me duplicate the sheet। अब केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। असाइनमेंट के क्वेश्चन में क्या गिवन है, असाइनमेंट के क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक ही शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल, यस। So can you explain the period column, like how to apply the formula in that? So I will do that, बट क्या होता है ना कि क्वेश्चन जब तक सही नहीं आता ना, तो मैं आंसर बार बार रिपीट भी करूंगा तो भी फायदा नहीं है। So tell me, where are you stuck? Where is the logic? You are not able to follow the logic. So I'm not able to find the first one, logical test. Logical test। तो क्लास में आए थे, Yes sir। क्लास में थे तो फिर ट्री डायग्राम बनाया होगा, कॉपी में बनाया था, नहीं बनाया था? Yes sir। कहाँ है वो ट्री डायग्राम? वो ट्री डायग्राम गार्डन में रखा है कहीं, है ना? So I am willing to explain, but you see, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस एंड में रिवीजन में आए और सब कवर हो जाएगा, सब समझ में भी आ जाएगा। I take almost 2 weeks to explain depreciation. I am doing it in less than an hour here, so a lot of things will be missed। So let me just quickly talk about this case, and then probably we will talk about how to program the period column। पर तब तक ट्री डायग्राम ढूंढ लो, वीडियो तो देख सकते हो बाद में भी। लेट मी जस्ट चेक कि रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। ऑल राइट, अब हमको क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल यानी टेबल एक ही बनेगी, बट डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसमें यू कैन हैव अ चॉइस। हमको दोनों की चॉइस चाहिए, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने की चॉइस चाहिए। तो चेंज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी पड़ेगी। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, दैट विल बिकम योर, विल गो टू डेटा, डेटा वैलिडेशन,
list, and here type db comma sln without gap, कोई स्पेस नहीं देना कहीं पे भी. नाउ यू हैव योर ड्रॉप डाउन मेन्यू. अगर मैं db सेलेक्ट करूंगा तो db के हिसाब से होना चाहिए काम, या sln सेलेक्ट करूं तो sln के हिसाब से. ओके, सो नाउ वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर सिर्फ SLN मेथड के हिसाब से करना होगा तो काम कैसे होगा, ऐसे ही होगा, राइट. वी हैव टू फॉलो दिस लॉजिक ओनली. द ओनली थिंग दैट वी हैव टू चेंज इज कि हमको ये ऊपर वाली फर्स्ट वाली रो में SLN हो तो SLN का कैलकुलेशन चाहिए, DB हो तो DB का कैलकुलेशन चाहिए. तो सबसे पहले फर्स्ट रो की कैलकुलेशन को चेंज करते हैं. ये SLN का एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट फॉर्मूला है, सो वी कट दिस आउट. वी टाइप एन इफ फॉर्मूला. क्या चेक करना है, मेथड में क्या सिलेक्टेड है. अगर B6 में इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे DB, कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, DB इज टेक्स्ट, इट्स नॉट अ नंबर. तो अगर DB सिलेक्टेड है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली DB का फॉर्मूला लगाना है. तो उसके सारे इनपुट्स यहाँ पे डाल देते हैं, कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, पीरियड एंड मंथ. पुट ऑल दैट, that becomes your DB formula. Otherwise you have a SLN formula. So that becomes your formula for the first row. First row में हमें कोई garbage cleaning की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा first row तो बनेगी ही बनेगी. अगर मशीन खरीदी है तो एक रो की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे सेम साल में वापस कर दो. So that becomes your formula here. Now हमने ये इफ फॉर्मूला SLN के हिसाब से बनाया था, जहां पे हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या E4 एम्प्टी है, क्योंकि ये गार्बेज क्लीनिंग वाला मेथड. तो हम क्या करेंगे, हमने जो बाकी का इफ फॉर्मूला बना रखा है, जो SLN के लिए हमने टाइप करा था, उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे. डू अ कंट्रोल X. गार्बेज क्लीनिंग की वैल्यू इफ फॉल्स में हमें ये फॉर्मूले को डालना है. सो फर्स्ट वी विल डू अ इफ में चेक करेंगे कि डेप्रिसिएशन मेथड में क्या लिखा है. डेप्रिसिएशन मेथड में अगर DB लिखा है, if DB is written, then you simply apply the DB method. DB method में हमें मालूम है कि कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, पीरियड और मंथ, ये सारे इनपुट्स होते हैं. जो जो इनपुट फिक्स होंगे उनको फिक्स कर लीजिए. एंड नाउ अगर DB सेलेक्टेड नहीं होगा तो फिर दूसरा ऑप्शन SLN ही है. SLN सेलेक्टेड होगा तो SLN के लिए जो हमने पहले से फॉर्मूला बना रखा था, जस्ट सिंपली पेस्ट दैट हियर and then close your brackets. Close those brackets and apply the formula till down. तो अब यही शीट हमारे लिए DB और SLN दोनों के लिए काम करती है. ठीक है, that is the only change that you have to bring in. So let me just go to formulas and show formulas. तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हो गए हमारे. तो हियर पीरियड वाले सेल में जो हमारे फॉर्मूलाज है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस में गार्बेज क्लीनिंग लगाने के बाद सेल ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए. और फिर है हमारा जो बड़ा वाला डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है. पहले वाले में सिर्फ हमें ये चेक करना है कौन सा मेथड के हिसाब से फॉर्मूला लगा दीजिए. SLN में फर्स्ट ईयर का एडजस्टमेंट लगेगा. बाकी जगह पे यू नीड टू क्रिएट दिस लार्ज फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला, जहां पे हमारे पास 1 2 3 4 इफ फॉर्मूलाज. तो चारों इफ फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से अप्लाई करने के लिए जरूरी है दैट यू क्रिएट अ ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम मैंने बहुत बनवाए हैं क्लास में, खुद भी बहुत बनाए हैं क्लास में, शेयर भी करें. सो प्रैक्टिस दोज ट्री डायग्राम्स टू डू योर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन. अगर ट्री डायग्राम सही बन गया तो हो ही नहीं सकता कि आप इफ फॉर्मूला में गलती करें. सो दैट इज हाउ द डेप्रिसिएशन question will be answered.
सबको बात समझ में आई है? लेट मी टॉक अबाउट द पीरियड वाला सेल। पीरियड वाले सेल के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। पीरियड वाले सेल में हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड है वहीं तक ही मामला जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो की हमेशा जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में इसको जस्ट कीप वन ओवर हियर। सेकेंड रो से वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला? नाउ एज आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग कि कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए वो इस रूल पे डिपेंड करता है। अगर रोज नीडेड की बात करें तो मंथ अगर लेस देन 12 है तो हमें लाइफ प्लस 1 रोज चाहिए, एक एक्स्ट्रा रो चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले साल में 12 महीने से कम टाइम के लिए मशीन को यूज किया है, ठीक है? सो दैट tells us that we will have to use the asset for one more year so that we can cover all those months that were left in the first year. ठीक है? So let me know if this is very clear to you. If anyone has any confusion कि ये life plus 1 का क्या चक्कर है, ये अगर बात समझ में आ गई तो हमारा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ वी नो कि यहाँ पे अगर मंथ लेस देन 12 है तो लाइफ प्लस 1 रोज चाहिए, अगर 12 है तो लाइफ के बराबर रोज चाहिए। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली चेक कि B5 में 12 लिखा हुआ है क्या, क्योंकि दैट विल लेट अस नो कि रोज क्या लाइफ के बराबर करनी है। सो व्हेन मंथ्स इन फर्स्ट ईयर इज 12 और B5 इज इक्वल टू 12 वी ट्रिगर दिस इफ फॉर्मूला। ये है हमारा इफ फॉर्मूला जो ट्रिगर होना चाहिए। ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला हमें ये कह रहा है कि चेक करो, क्या चेक करना है? चेक करो कि पिछली वाली रो का जो पीरियड है, E3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, E3 का मतलब जो सेल जिसमें अभी 1 लिखा हुआ है, इस सेल में, पिछले वाले रो के सेल में, पीरियड वाले सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या अभी ये लाइफ से छोटी है? क्योंकि हमें कितनी रोज चाहिए? लाइफ के बराबर रोज चाहिए, तो हम लाइफ से ही कंपेयर कर रहे हैं। वी आर कंपेयरिंग 1/6 कि जब तक ये 1 6 से छोटा है, जब तक ये सेल में जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, तब तक हमें 1 में +1 करना है, यानी पिछले वाले पीरियड में +1 करना है। तो अगर 2 लिखा होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 लिखा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है? वही लॉजिक हम दूसरे वाले फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हैं, जहां पे अब हम लाइफ से कंपेयर करने की जगह लाइफ प्लस 1 से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें एक एक्स्ट्रा रो चाहिए, बिकॉज मंथ्स इन फर्स्ट ईयर आर लेस देन 12। So with that, I hope it's a bit more clear, the logic is bit more clear, but ये सब काम होता हमारे ट्री डायग्राम से, ठीक है? Try and practice tree diagram. Anyone has any other doubt in depreciation? कार्तिक बोलो। सर जो हमने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाया है, तो उसमें जो हम जो सेकंड पार्ट करते हैं, जैसे हमने मतलब डीबी का फॉर्मूला लगा दिया नॉर्मली, फिर एसएलएन की तरफ स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम B5 इक्वल टू 12 डालते हैं, मंथ्स इन फर्स्ट इक्वल 12। वो क्यों डालते हैं सर? उसके बिना भी तो हो सकता है, मतलब उसके बिना मैंने किया था, हो गया था। एज इन मैंने डाला था कि यहाँ से यहीं पे जहाँ है तो है। तो अगर तुम मंथ्स इन फर्स्ट ईयर चेक नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट रो है? तो सर मैं वैसे कर सकता हूँ ना कि मतलब यूथफुल लाइफ +1 करके जो एसएलएन का सेकंड फॉर्मूला है, जो लास्ट रो में वो यूज होगा वो डाल दूंगा, और जो फर्स्ट रो में यूज होगा उसकी जगह मैं डाल दूंगा कि पीरियड इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमारा। तो वो जो फर्स्ट फॉर्मूला है, तो उतनी मेहनत हो जाएगी, इज द सेम तो अमाउंट उससे भी ऑफ हो ही इफ। जाएगा ना। देखो, मुझे जो बेस्ट लॉजिक लगता है वो मैंने अपनी क्लास में एक्सप्लेन किया। नाउ इफ यू थिंक that there is one more logic which can give me the same answer,
द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट आई शुड गेट द राइट आंसर। ठीक है, अगर आंसर राइट नहीं आया तो कोई भी प्रोग्रामिंग सब गलत। सो इट डज नॉट मैटर हाउ यू आर डिजाइनिंग योर इफ फॉर्मूला, जैसा मैंने बनाया वैसा ही बनाने के नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मैंने गलत बनाया तो वो गलत ही है। सो द आइडिया इज टू गेट एन आंसर। एक्सेल में काम Okay. करने के बहुत सारे तरीके हैं, इफ फॉर्मूला इज वन ऑफ देम, and designing an if formula is again dependent on the person. So understand the logic and then apply it, get the right answer. ठीक है, नो वरीज कि तुमने कितने if formula लगाए, आंसर सही है तो सब सही है। ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? तो आज हम डेप्रिसिएशन पे फिर डिस्कशन ओवर करते हैं। दिस इज आवर डेप्रिसिएशन। बात करते हैं लोन की। सो लेट मी फर्स्ट प्रिपेयर द बेसिक लोन शीट। बेसिक लोन शीट में हमारे पास जो इनपुट्स रहते हैं वो है लोन अमाउंट। Let me just stop the record.